जय श्री राम। सुनिए हरी सुल्तान जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। Keen, what would you like to say? Hey Harris, how you doing? Very good. Very good. I'm not turning on the camera because I look like a bum. But the gentleman you had just earlier, I mean, what's his name? I don't know. The guy who was saying energy, soul is in the. Yeah, I mean, I have literally till now not had a single Hinduism guy who can say one definition. Like every single Hinduism guy is like, no, well, Hinduism isn't this, it's that. And the other guy is going to be like, Hinduism isn't this, it's that. And right now, this guy was like, Atma is energy. No, it's not. Hundreds of other like you Hinduism guys you talk to, they're like, no, Atma is, it goes from conscious. This is your consciousness. When you die, Atma is your consciousness, which can think for itself. Atma goes into another what do you call reincarnation? Reincarnation, yeah. How are you gonna do a reincarnation with it? This is exactly what I said to him, and I said, you know, like every time, you're right. Every time you hear from them, they make up their definitions as they go along, and they throw in law of conservation of energy. Like, okay, energy can neither be created nor destroyed. So you are energy, therefore you can't be destroyed. Therefore it goes somewhere. Problem solved. So easy. So by the way, guys, do check out Bayer King's channel. Subscribe, and he's doing great work. He's probably the only Pakistani explosive creating content after me with his face, which is very important. And I would like you to, make up a real good name as well, like Muhammad Bashir or something. So it just gives the illusion, like a pseudonym, like a real name, because Bayakin doesn't. It just sounds not very personal-like. So yeah, do subscribe to his channel. It's wonderful. Cup has energy. You can find energy in a lump of coal, and when it starts becoming complicated for them to answer, that's when they go even more into this vague domain. That yes, sure, but they get God upset. exists in the poop as well. Yeah, but they get upset when you're like, well, Abrahamic religion. Oh, we are nothing like Abrahamic religion. Don't compare us to the Abrahamic religion. But even then, they take their like Puranas or whatever the books they have, and those books are written just generically. Oh, people have this feeling, and the soul comes out, just like you would expect all these books to have written. But now they're gonna take that as like. And it's not unique to Hinduism as well. The concept of soul has existed in pretty much every culture, because people have not been able to understand consciousness. What is it? What is it about me that I know who I am? Like, I mean, what separates me from my hands, from my eyes? What is it? It's a... जी सुन लिए, वो कह रहे हैं there is not a single Hinduism guy who can define Hinduism. Okay, you want a definition? You got a definition. ये देखो आपके स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है, ये है हिंदुइज्म का डेफिनेशन. ये मैं यकीन मतलब चलो ये भी क्रेडिट है, ब्राह्मण ही ले लिया. अब ब्राह्मण ने हिंदुइज्म का डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, इंग्लिश में लिखा, और संस्कृत में कभी कोई लिखा होगा नहीं होगा ये तो मेरे को मालूम नहीं. तो ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, ये है हिंदुइज्म का डेफिनेशन, ठीक है. अब्राहमिक रिलीजन का भी डेफिनेशन मैंने लिख चुका हूँ. फिर वो ये भी मतलब इस्लाम की डेफिनेशन भी मैं लिख चुका हूँ, ठीक है. अब्राहमिक रिलीजन का डेफिनेशन अब ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है. ये है अब्राहमिक रिलीजन का डेफिनेशन. डू अनटू मैन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू बी डन अनटू यू. ये है, ये बाइबल से आया है. वहाँ पे जो अदर्स है वो अदर्स कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली डू अनटू मैन, मैन इज ए सिंगल ट्राइब. और इस्लाम की डेफिनेशन तो आपको मालूम है, डू अनटू मोमेंट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट टू बी डन अनटू यू. डू अनटू काफिर व्हाट यू ये अल्लाह वांट्स. Allah wants, yes. Here you have to add, Allah wants to do unto kafirs as you do to most of your enemies. ये मतलब मोटा मोटी ये इसका रिलीजन, इसका डेफिनेशन किसका? आपका इस्लाम का डेफिनेशन, ठीक है. तो दूसरी बात वो क्या बोल रहे हैं, ये कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस कैन थिंक. ये हिंदुइज्म का स्पीक्स द कॉन्शियसनेस कैनॉट स्पीक, कैनॉट थिंक अबाउट हिमसेल्फ. ओके, आत्मा या कॉन्शियसनेस
वो इसीलिए है, आपके बॉडी 60 साल के लिए रहता है, ठीक है। इससे पहले आप कहाँ थे? आप तो बॉडी हो ही नहीं सकते, माइंड भी आप हो नहीं सकते, क्योंकि आप बोल रहे हो ये मेरा माइंड है, ठीक है। और जो छोटा बच्चा होता है उसका माइंड मतलब उतना तो डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो एक मरा हुआ बच्चे के अंदर कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है? किस चीज़ की वजह से आप ये बच्चे का मरा हुआ कहते हो? वहाँ उसमें क्या नहीं है जिसके लिए आप उसको मरा हुआ कहते हो? ये खाली ये इंसानों के नहीं है, जानवर का भी, मतलब जानवर प्लांट सबका मतलब कि क्या चीज़ चला जाता है जिसके लिए आप उसको डेड कहते हो? व्हाट मेक्स ए ट्री डेड? व्हाट मेक्स ए एनिमल डेड? व्हाट मेक्स ए मैन डेड? बॉडी तो वही है, क्या उसमें क्या नहीं है जिसके लिए उसको आप मुर्दा कहते हो? ठीक है। कभी योग दर्शन पढ़ो, वहाँ पे आपको मिलेगा 5 प्राण, 5 प्राण। तो वहाँ पे ये डेफिनेशन क्लियरली मतलब डिस्क्राइब हो चुका है आपके अंदर क्या क्या प्राण है। और प्राण, ये जो प्राण वायु आप कहते हो, ये आपको मतलब ये छोटा बॉडी को बड़ा बॉडी हो के बूढ़े तक तो कैसे लेके जाता है ये प्राण? आप प्राण कैसे बाहर से मतलब एब्जर्व करते हो और कैसे लेके जाते हो? जब मरते हो क्या क्या आपके साथ होता है, मतलब इस बॉडी के साथ आपका क्या क्या होता है, ये पूरा क्लियरली योग दर्शन में लिखा गया है। ये जो भी आपके चैनल पे आते हैं वो आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हैं, ठीक है। यदि जो मुझे पूरा डिटेल्स मालूम है तो उसके लिए मतलब किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए मान लो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, न्यूटन का प्रिंसिपल, आप कागज कलम लेके उसको तो मैथमेटिकली प्रूव करोगे, है कि नहीं? है कि नहीं? उसके लिए कितना टाइम लगेगा? वो जो आते हैं आपके चैनल पे, आप उनको कितना टाइम देते हो? एक तो वो जितना मैं जितना सुन चुका हूँ, जो लोग भी आते हैं वो आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हैं। अगर ये पूरा मतलब अगर आप पूरा डिटेल में इस चीज़ के ऊपर आपको नॉलेज चाहिए तो कम से कम 300 घंटे देने पड़ेंगे। आप दोगे उन लोगों को 10 मिनट में, आप बताओ भाई 300 मिनट का कंटेंट 10 मिनट में कैसे? मतलब 300 मिनट नहीं, 300 आवर का कंटेंट, 300 आवर का कंटेंट कैसे कोई बंदा ये 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन करके चला जाएगा? वो खाली यही बोल सकता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, एक मुर्दा, आप मुर्दा क्यों कहते हो? उसके अंदर क्या नहीं है जिसके लिए? बॉडी तो वही है, बॉडी बिल्कुल वही डिटो टू डिटो बॉडी है, लेकिन उसके अंदर कुछ है नहीं जिसके लिए आप उसको मुर्दा कह रहे हो। वो क्या चीज़ नहीं है? अगर मेरे को इतना ही टाइम मिलेगा मैं इतना ही बता पाऊंगा। अगर मुझे 300 घंटे मिलेंगे तो मैं शुरू से एक एक पॉइंट डिस्कशन करके जाऊंगा। ये आत्मा कहाँ से आया, ये आत्मा है, ये हमें कैसे मालूम है, किस बिना पर लॉजिकली प्रूव करके जाएंगे ना। जैसे आप ये जो भी ये एसएससी क्लर्क या ये सब एग्जाम दे चुके हैं, उन लोगों को मालूम है, उन लोगों को एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, उसका 4 आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो उसको 30 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड के अंदर उनको वो आंसर करना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर तो 15 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन अगर उसको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे तो 5 मिनट लगेंगे। तो वो तो बोर्ड में 5 मिनट आप वो दे नहीं रहा, 15 सेकंड में वो उसका आंसर उसको चाहिए। तो 15 सेकंड में जितना मतलब वो शॉर्टकट यूज़ करके वो 15 सेकंड में वो आंसर दे रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ पे भी जो आपके चैनल पे आ रहे हैं, ये वही 15 सेकंड वाला, मतलब उनको हो सकता है पूरा डिटेल मालूम है, आप उनको उतना टाइम दोगे नहीं, ठीक है। अगर नहीं दोगे, ये इसको प्रूव कहाँ से चालू करेंगे? तभी जाके ये आत्मा तक हम पहुँचेंगे। सबसे पहले प्रमाण से चालू करेंगे। प्रमाण मतलब सबूत। सबूत से कितने टाइप के सबूत हैं? एक ये आपके अंदर जो इल्म आता है, कैसे आपके अंदर वो इल्म आता है, यहाँ से अगर ये शुरू करके हम जाएंगे, ये कम से कम 300 आवर चाहिए वो जो आत्मा तक पहुँचने के लिए,
ठीक है, तो उतना टाइम तो आप दोगे नहीं। आप ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू को बोलोगे 5 मिनट में ये बता, 5 मिनट में कोई कैसे 5 मिनट में जितना बताया जा सकता है उतना वो बता के निकल जाएगा। तो आप उसको ये इधर उधर बात कर रहे हो, ये डॉगमा है, ये है फलाना ढिमकाना है। अगर ये फलाना डॉगमा है तो डॉगमा है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हिंदू डॉगमा के साथ जीना चाहता है, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? आप तो हिंदुस्तान में हो नहीं, आप तो मतलब हिजरत कर गए। जैसे सब मोमिन हिजरत करते हैं, जो इस्लाम के फॉर में बोलेगा वो भी हिजरत करेगा, जो अगेंस्ट में बोलेगा वो भी हिजरत करेगा। तो सब भगोड़े भाग जाते हैं, इधर से भाग जाते हैं। क्यों भाई भाग क्यों जाते हो? अरे सच बोल रहे हो, भाग क्यों जाते हो? भाग क्यों जाते हो? तो मुझे आपके दिल दुखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आप मतलब ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप लोग आपको गालियां दे, इसीलिए मेरे को ये सब मजबूरन बोलना पड़ता है। ठीक है, ये कर्मा क्या है? कर्मा वही है जिसके लिए हारी सुल्तान और गाली कमाल अपने देश से एक तो मुंह छुपा के बैठा हुआ है, एक अगर भी बैठा हुआ है पाकिस्तान आने की नाम नहीं ले रहा। ये कर्मा है। तो आप अपने हद में रहो, क्या जरूरी, मतलब आप इंडिया में रहोगे नहीं, इंडिया आओगे नहीं तो हिंदू डॉगमा में जी रहा है। आपको क्या तकलीफ हो रही है? वो डॉगमा में अगर वो खुश है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ये है अब्राहमिक रिलीजन की सोच, मतलब दूसरों के ऊपर हावी होना। भाई वो उसका लाइफ है, वो जैसे मर्जी वो जिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वो डॉगमा में जी रहा है, डॉगमा में जीने दो, आप तो सही जी रहे हो ना, आप अपना लाइफ सही जियो। तो दूसरों के ऊपर आप हावी होना का क्यों चाहते हो? ये मेंटालिटी आपको कहाँ से मिली? इस्लाम से मिली। हम सही हैं, बाकी सब गलत हैं। भाई बाकी सब गलत हो, सही हो, जो भी हो, तो वो तो आपको आके नहीं पूछ रहे हैं ना जी हम ये गलत कर रहे हैं, हमें आप ये थोड़ा सा आपके जो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार हमारे लिए खोल दो, ताकि हम ये उल्टा आप खुद मतलब बाहर तीर जा रहा है, आप खुद बुला के बोल रहा है या चाहे दे या घुस जा। ठीक है, तो आप अपनी हद में रहो। अगर हद में नहीं रहोगे तो आएंगे लोग, तो मेरे जैसे लोग या जो जानकार लोग हैं वो आएंगे, आपको धुलाई करके जाएंगे। और दूसरी बात क्या कर रहे हो? ये गोबर, हाँ ये क्लिप फिर रखो, फिर इसके बाद फिर थोड़ी सी धुलाई होगी इन लोगों की। Okay, so we talk about how religion or religious dogma actually makes a fool out of you. And when I talk about Islamic dogma, Islamic dogma, obviously a lot of Muslims get upset, like that guy, that brave guy who wanted to defend his faith, but when given the opportunity to defend his faith, he wouldn't show up. That guy was his name, Junaid guy. So they get upset, but they have no good rebuttal. They have no good counter arguments. And Hindus and non-Muslims love it. But when we do the same thing with Hindus, when we show them their dogma, they also make different excuses. They also make excuses like cow dung has medicinal qualities and cow urine has medicinal qualities. Oh, we're not forcing you to do it. I don't care. I didn't say that you're forcing me to do it, but I'm saying that when you do it, is it true or not? So have a look at this. These guys are so stupid. And a lot of Indians were actually surprised as well. They were like, oh, we didn't know that. There was a shit throwing contest in India just recently. Look at this. These pieces that you're seeing, they are throwing cow dung at each other. It's some sort of a festival. And why has that happened? A lot of people say, well, that's our scripture doesn't tell you to do that. But why has it happened? But your scripture does tell you that cow is a sacred animal. A cow is your mother. It provides you with nourishments, with milk and whatever. Yes, we know that too, but we don't have to worship it. We don't have to give it undue respect. So when you do that, when you start worshipping it, of course this is what's going to happen. This is what these guys
drink cow urine, they put cow dung on their face as though it's like some sort of a moisturizer, aloe vera. So that's what these guys do, and that's the result of religious dogma. देख लिए तो ये क्या कह रहे हैं ये ट्रेडिशन है इसीलिए काउडंग, मतलब ट्रेडिशन होगा, फेस्टिवल होगा, इसलिए काउडंग एक दूसरे के ऊपर वो फेंक रहे हैं। भाई कौन कहाँ क्या कर रहा है, मतलब ये सब ट्रेडिशन में आता है। जो चोरी कर रहा है वो भी ट्रेडिशन में आएगा फिर, है? जो चोरी कर रहा है वो भी ट्रेडिशन में आएगा, नहीं आएगा? और ये कहाँ पे क्या कौन क्या कर रहा है इसके लिए मतलब सारा का सारा ठेकरा हिंदुइज्म के ऊपर, मतलब ये ट्रेडिशन में आया है, आपको कैसे मालूम पड़ा? हाउ डू यू नो? एजम्पशंस आर प्रेटी बेड, यू नो। आप एज्यूम कर रहे हो वहाँ पे बैठ के, एज्यूम कर रहे हो ये ट्रेडिशन में होगा, ये ट्रेडिशन में है, मतलब आपको कैसे मालूम ये ट्रेडिशन में है? जो इल्जाम आप लगा रहे हो, ये देखो ये डोगमा, आपको कैसे मालूम ये ट्रेडिशन में है? आप वहाँ पे कोई कुछ भी करेगा, मतलब वो आप हिंदुइज्म की ट्रेडिशन बन जाएगा। आप तो हिंदुइज्म के बारे में जीरो आपके नॉलेज है ठीक है, तो नॉलेज जिस बात में नॉलेज नहीं है उस बात में बात नहीं किया करते, ठीक है? आप तो सैम हैरिस कौन सैम हैरिस? कौन है वो सैम हैरिस? वो क्या डिक्शन डिक कहा का सैम हैरिस, वो दूसरा वो जो भी है वो सब है कौन? उन लोगों को कौन पूछता है? रिलीजन में विकिपीडिया सर्च कर रहा था, रिलीजन एथिज्म एथिज्म या वही मोनोथिस्टिक रिलीजन, मतलब ये दूसरों के ऊपर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू लादने की। हिंदुइज्म ऐसा नहीं है, हिंदुइज्म पूरा टोटली डिफरेंट थिंग है। हिंदुइज्म में कोई किसी के ऊपर कोई भी चीज़ मतलब थोपता नहीं, ठीक है? मान लो हिंदुइज्म है ओपन मार्केट, समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे लोग वैरायटी दुकान खोल के बैठे हैं और अपने हुनर से। आपको चाहिए आप जाओगे उन लोगों के पास, वो लोग आपके पास आएंगे नहीं, ठीक है? ये जितने भी आप बाबा बोलो, चाहे गुरु बोलो, ज्योतिष बोलो, आप जो भी बोलो, वो लोग आपके पास कभी आएंगे नहीं। ये पंडित बोलो, जो भी है, कभी वो आपके पास आएंगे नहीं कि आप आओ मंदिर में आओ, आप आओ मेरे से ये एस्ट्रोलॉजी की सलाह ले लो, आप आओ मेरे से वास्तु की सलाह ले लो, ये लोग कभी आएंगे नहीं। लोग उनके पास लोगों को जब जरूरत पड़ेगी तब वो उनके पास जाएंगे, ठीक है? ये ऐसा चलता है। इसके मतलब ये जैसे मतलब हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, वैरायटी स्पेशलिस्ट है, तो आपको एक हेल्दी पर्सन क्यों हॉस्पिटल जाएगा? जब अनहेल्दी होगा तब ये हॉस्पिटल जाएंगे ना, और जाके जिस डिपार्टमेंट की डॉक्टर मतलब उनको ज़रूरत है वो उसी डिपार्टमेंट में आएंगे। हिंदुइज्म में एग्जैक्टली यही है। हिंदुइज्म में कोई किसी के ऊपर कोई भी चीज़ लाता नहीं। और बाकी रहा हिंदुइज्म के ये जो डेफिनेशन की बात कर रहे हो, हिंदुइज्म में है नौ दर्शन नौ है। क्या क्या है? न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य योग, मीमांसा, वेदांत, ये है चार आस्तिक दर्शन। फिर नास्तिक दर्शन 3 है, चारवाक, हिंदुइज्म, जैनिज्म, ये 9 दर्शन है। 9 दर्शन के अलग अलग फॉलोअर्स हैं। जो भी आएगा वो मतलब मैं मान लो मैं न्याय दर्शन का बंदा हूँ, जो न्याय दर्शन की आइडियोलॉजी है मैं वही कहूँगा ना। जो सांख्य दर्शन से आएगा वो सांख्य की आइडियोलॉजी बोलेगा, जो ये वेदांत से आएगा वो वेदांत की आइडियोलॉजी बोलेगा, ये करेगा ये। लेकिन मैं ये जो डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है, ये डेफिनेशन ये जितने भी ये 9 दर्शन वाले हैं, ठीक है, ये 9 दर्शन वाले ये फॉलो करते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है ये आपका वो डेफिनेशन ये फॉलो करते हैं। ये है सोशल हिंदुइज्म। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहे हैं इसी के ऊपर सारा हिंदू लॉज बेस्ड है, ठीक है। वो ये जो दर्शन है ये दर्शन है स्पिरिचुअल हिंदुइज्म, ठीक है।
स्पिरिचुअल हिंदुइज्म ये नौ दर्शन के लोग अलग अलग फॉलो करते हैं। ये जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपका आ रहा है ये है सोशल हिंदुइज्म। ये जो लॉ है ये नौ दर्शन, जो भी नौ दर्शन है, ये सोशल रूल्स इन सब के ऊपर लागू होता है। इसी मतलब डेफिनेशन के ऊपर हमारे सोशल रूल्स बेस्ड हैं। तो मैं हूँ ब्राह्मण, मेरे से पूछो ये रूल्स रेगुलेशन कैसे तैयार किया जाता है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये मेरे को मालूम है, ये मेरी स्पेशलिटी है। ये हम कब से करते आ रहे हैं, ये आज ये कोई नई चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। ये अगर कोई मेरे को बोलेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख के दिखाओ, एज पर हिंदू ये मतलब हिंदू आइडियोलॉजी मैं लिख के दिखा सकता हूँ। ये चीज़ हमारे पुरखों से, हम कितने पुरखों से करते आ रहे हैं हमको मतलब मुझे खुद मालूम नहीं। जितने भी ब्राह्मण होंगे मतलब वो थोड़े बहुत जानते होंगे, लेकिन उनको भी मालूम नहीं। ये चीज़ हम भली भांति कर सकते हैं। ये और दूसरा है वो जज का काम, ठीक है। ये दोनों हम भली भांति कर सकते हैं। तो आपको अगर समझना है, मतलब हिंदुइज्म समझना है, हिंदुइज्म में कुछ भी कोई भी चीज़ डॉगमा नहीं है। हिंदुइज्म इज नॉट ए बिलीविंग सिस्टम। हिंदू किसी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते। हिंदू जानते हैं आत्मा है, जानते हैं परमात्मा है, जानते हैं मैं मतलब ये बॉडी है, ये भी मतलब हमें मालूम है। हिंदुइज्म बिलीफ सिस्टम पे ऊपर काम नहीं करता। यहाँ पे कोई भी चीज़ सुपरस्टिशन नहीं है। वो जो गोबर फेंक रहे हैं वो क्यों फेंक रहे हैं आप उनसे पूछो। जो भी फेंक रहा है उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा जो जिसके लिए वो फेंक रहा है। आप जाके उससे रीजन पूछो, भाई क्यों तू फेंक रहा है, आपको जानना है। नहीं आप इधर से ये स्टूडियो में बैठोगे बोलोगे देखो दैट इज डॉगमेटिक। हाउ डू यू नो दैट इज डॉगमेटिक? यू आर एज्यूमिंग थिंग्स। उनके पीछे ये क्या रीजन होगा, क्यों फेंक रहे हैं ये? आप जाके कभी पूछे हो उन लोगों से ये जी आप क्यों फेंक रहे हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है? हिंदुइज्म लॉजिक के ऊपर चलता है, डॉगमा के ऊपर नहीं। ये जो फेंक रहे हैं उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, आप उनसे पूछो वो बताएंगे। अगर गलत लॉजिक होगा तो सही लॉजिक मानेंगे। आप उनको प्रूव कर दोगे नहीं ये मतलब सही नहीं है, ये सही है, तो जो सही होगा वही मानेगा। ये ऐसे चलता है। चलो कभी मतलब एक बार मेरा स्टूडियो बन जाए तो आप लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। कल आते हैं, कल फिर गालिब कमाल जी के ऊपर थोड़ा मतलब बरसते हैं, ठीक है। वो फुर करके थोड़ा ज़्यादा हवा में उछल रहे हैं। तो कल उनकी धुलाई होती है, ठीक है। आज के लिए जय श्री राम।